हेलो फ्रेंड्स, लेट अस कंटिन्यू आवर एथिक्स जीएस पेपर 4 क्लासेस। चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7, दैट इज प्रॉबिटी इन गवर्नेंस। और टॉपिक हमारा चल रहा है स्टिल वी आर एट चैलेंजेस ऑफ करप्शन। एंड चैलेंजेस ऑफ करप्शन में आज हमें कवर करना है फर्दर सब टॉपिक, दैट इज कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। नाउ इफ वी लुक एट द सिलेबस of this chapter, that is probity in governance, we started with the first I explained you the concept of probity and governance, not yet probity in governance. मैंने आपको कहा था probity in governance हमें समझने के लिए first we need to go through all these topics. Then we started with the challenges of corruption, right? ये सारे टॉपिक्स को जंप करके मैंने सीधा स्टार्ट किया challenges of corruption, जिसमें हमने करप्शन को किस तरह डिफाइन किया जाता है, या क्या डेफिनेशन है हमारे पास, या डेफिनेशन है भी या नहीं है। अगर हम इन्फर कर रहे हैं तो डेफिनेशन को तो कहाँ से। सो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो है हमारे पास, या उसके अलावा सेकंड ARC की जो रिकमेंडेशंस हैं, या वेरियस डिफरेंट जो रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है, उसमें क्या डेफिनेशंस या क्या मायने दिए गए हैं करप्शन के, उसके माध्यम से हमने करप्शन को डिफाइन करने की कोशिश करी थी, राइट। फिर हमने समझा कि भैया करप्शन किस किस एरिया में, किस किस फील्ड में, किस किस फॉर्म्स में, किस किस टाइप्स में हमें देखने को मिलता है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड करप्शन इन दोज एरियाज, राइट। सो पॉलिटिकल करप्शन, इकोनॉमिक करप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, जुडिशियल करप्शन, ठीक है। सो इस तरह हमने एक एक करके प्रीवियस सेशन में ये सारे कॉन्सेप्ट को समझा है। मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ऑल दोज सेशंस, राइट। देन इन द लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड द administrative corruption, the factors, the forms of administrative corruption, the factors behind administrative corruption, and then how to resolve or how to solve this problem of corruption in administration. So there we took up some of the recommendations made by the second ARC. So second ARC की जो recommendations अभी तक मैंने आपको बताई हैं जितनी भी, make sure कि आपके पास वो अच्छे से duly noted हो, आंसर में कोट करने के लिए काम आती है, right? Now in today's session we'll deal with the ethical infrastructure, right? To deal with corruption in civil services or public service, we need an ethical infrastructure, and while understanding ethical infrastructure we'll understand the concept of code of ethics and code of conduct. So इस चैप्टर में दिए गए जो ये टॉपिक है कोड ऑफ एथिक एंड कोड ऑफ कंडक्ट, वो हम चैलेंजेस ऑफ करप्शन टॉपिक के अंडर ही कवर कर रहे हैं। once we deal with this, the code of ethics and code of conduct for both for public or civil services and then for judiciary, then we will enter into, from the next session we'll enter into utilization of public funds. एक बार utilization of public funds हम अच्छे से समझ लें, then we'll enter into the concepts of public service, because philosophical basis of public service, philosophical basis of governance and probity, we have covered that in the first session. फिर हम पढ़ेंगे, now we are covering the challenges of corruption. Within this we'll cover the codes of ethics and code of conduct. Then we'll enter into utilization of public funds, right? फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे concept of public service. concept of public service के बाद हम पढ़ेंगे the quality of service delivery, and then the concept of work culture, और फिर rest of the topics will follow. All right. So now let us continue with today's topic. So to deal with the corruption in the public service or the civil service, there must be an ethical infrastructure for civil services. An ethical infrastructure for civil services. Now those who have not attended the previous session, make sure that you go through them as soon as possible, as quickly as possible, right? Because in this very statement, the ethical infrastructure for civil services, if you are not aware with the concept of first chapter में जो हमने ethics पढ़ा था कि ethics क्या है, right? Then हमने समझा था कि civil services क्या होती हैं. So अगर आपके बिल्कुल basic points clear नहीं है, right? So it will be, although I will try to explain everything as plainly and as lucidly as possible, right? But
ज़्यादा बेटर तो यही रहेगा ना कि दैट यू गो थ्रू द प्रीवियस सेशंस, है ना. So what do we mean by having an ethical infrastructure for civil services? So that we can control this menace of corruption. So under this, we can divide the ethical infrastructure into two parts. First is ethical guidance, and second is ethical accountability. So who will provide ethical guidance for civil services? Ethical guidance means the code of conduct, or it encompasses the code of conduct for the civil services and the code of ethics. So what is mentioned as a separate topic, that is code of ethics and code of conduct, should be covered under this challenges of corruption के अंडर पढ़ा जाना चाहिए. ये जब हम challenges of corruption में how to deal with corruption in administration पढ़ते हैं, और उसमें भी जब हम ethical infrastructure को पढ़ते हैं, वहां आता है code of ethics and code of conduct, right? So we will try to understand in this in details. Apart from that, for civil servants कहाँ से और guidance उन्हें मिल सकती है कि भैया how to be ethical in their duty or in their service. So although when the new civil servants, they go through a whole training process, right? So a lot of seminars are conducted, a lot of case studies जो है वो उन्हें दिखाई जाती हैं, बहुत सारे सीनियर्स आकर जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं. इंडिया के एज वेल एज ग्लोबल लेवल पर कई इश्यूज और उन इश्यूज को कैसे एथिकली रिजॉल्व किया गया, इस पर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है. सो ट्रेनिंग becomes an important part of ethical guidance, right? Seminars and case studies, training, right? उसके अलावा डेफिनेटली एथिकल गाइडेंस जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? द लॉज, द स्टैट्यूट्स, they also provide the ethical guidance that what is ethical, what is supposed to be done in any given situation, right? In your civil duty or civil services. Secondly is ethical accountability. Now we have discussed about ethical accountability, like the annual confidential या annual जो असेसमेंट रिपोर्ट बनती है किसी भी एम्प्लॉय की, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, स्पेशली सिविल सर्वेंट्स की, उनकी जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, जिसमें साल भर का उनका लेखा जोखा उनके सीनियर्स प्रिपेयर करते हैं कि भैया हमारे इस जूनियर ने क्या किया साल भर में, राइट? दैट कीप्स देम एथिकली अकाउंटेबल. अगर उन्होंने कुछ अनएथिकल किया होता है तो इट इज सपोज टू बी मेंशन्ड इन दैट रिपोर्ट. देन डेफिनेटली द राइट टू इंफॉर्मेशन और the whole e-governance, जो different platforms and channels गवर्नमेंट ने ओपन किए हैं ई-गवर्नेंस के, उसके माध्यम से सिविल सर्वेंट्स को अकाउंटेबल या एथिकल अकाउंटेबिलिटी फेस करनी पड़ती है, राइट? विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ आरटीआई एंड ई-गवर्नेंस अंडर दिस टॉपिक, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, एंड देन विल गो इनटू राइट टू इंफॉर्मेशन. देन देयर इज पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, right? That also ensures ethical accountability of civil servants. Then what else? और कोई example आप क्या दे सकते हैं? We have discussed these majority of these points apart from RTI. We have discussed the rest of the points in the previous session. Make sure that you go through that. Yes, another point is you can also add here social audit, right? So जैसा कि मैंने आपको बताया था, civil services में basically क्या होती हैं? Now majority of you guys are aiming for the all India service, right? Now all India service में भी IAS, right? IPS भी है and foreign service भी है, but majority of you are aiming for the IAS, administrative services, जिसमें after almost 12-14 years की सर्विस के बाद आप पहुंच जाते हैं secretarial level पर, joint secretaries, then additional secretaries, and then secretaries, and many different type of secretaries are there, right?
वहां पर पॉलिसी मेकिंग का काम हो जाता है आपका, या उसके अलावा भी अगर आप डायरेक्टरेट लेवल पर हैं या सेक्रेटेरियल लेवल पर हैं, यहां पर आपका काम होता है पॉलिसी मेकिंग का, राइट। एंड ऑल इंडिया सर्विस में जो है वो कार्डर सिस्टम है, ठीक है। चलिए, अगर ऑल इंडिया सर्विस ना भी अगर हम माने, अगर आप कोई किसी भी तरह की सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक लेवल के बाद आपकी जॉब हो जाती है क्या, पॉलिसी मेकिंग की, पॉलिसी फॉर्मुलेशन की, प्लानिंग की, पॉलिसी बनाने की, राइट। नाउ दीज सिविल सर्वेंट्स, स्पेशली ऑल इंडिया सर्विस में जो सिविल सर्वेंट्स हैं, कार्डर बेस्ड सिस्टम के हिसाब से, लाइक फॉर एग्जांपल आप अपने राज्य की बात करें, लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, तो हिमाचल प्रदेश में जो आईएएस आईपीएस अधिकारी होंगे, जरूरी नहीं है कि वो आईएएस आईपीएस अधिकारी जो है वो हिमाचल प्रदेश के ही हों, राइट। वो इंडिया के किसी भी राज्य के हो सकते हैं, ठीक है। कार्डर उन्हें हिमाचल प्रदेश मिला है, और अगर वो हिमाचल प्रदेश के लिए कोई पॉलिसी या प्लानिंग कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, सो परहैप्स दे आर नॉट वेरी अवेयर ऑफ द सिचुएशंस एट द ग्राउंड लेवल. I'm trying to explain the point social audit here, right, which we have already discussed in the previous session, but let me give you a recap of that. So the civil servants might not be aware of the situations at the ground level, that the locals are rather not just aware, but they have the, उनका नब्ज पर हाथ है, right. तो from the level of policy making, then execution, and then उस पॉलिसी को कैसे, क्यों एग्जीक्यूट किया गया, या क्या कारण है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हाईवे ही बनाना है, ठीक है, तो आप कितनी जमीन एक्वायर करेंगे, कहां जमीन एक्वायर करेंगे, ठीक है, किसको आप जो है वो ठेका दे रहे हैं, लोकल लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा या नहीं, कितने में आप जो है वो ठेका निकाल रहे हैं, राइट, टेंडर कितने का पास कर रहे हैं. सो पूरे प्रोसेस में लोकल्स को इन्वॉल्व करना, नॉट जस्ट पॉलिसी या प्रोग्राम या कोई भी प्लान है उसके एग्जीक्यूट होने के बाद सोशल ऑडिट नहीं होगा, उससे पहले ही पॉलिसी फॉर्मेशन के लेवल पर ही लोकल्स को इन्वॉल्व करना, पार्टिसिपेटरी बनाना एडमिनिस्ट्रेशन को या गवर्नेंस को. याद होगा आप लोगों को गुड गवर्नेंस की जब हमने बात करी थी, तो इट ऑल्सो इंक्लूड स्मार्ट गवर्नेंस एंड एथिकल गवर्नेंस, दोनों के कंपोनेंट होंगे. सो दिस इज व्हाट गुड गवर्नेंस इज, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन. दिस इज द good governance. If this portion is smart governance and this portion is ethical governance, then this overlapping region is good governance. So all those 8 points अगर आप लोगों को याद होंगे तो that includes participation of people, right? So yes, social audits, they ensure ethical accountability. Public Service Guarantee Act कि जो प्रोग्राम, जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है वो इंटेंडेड सिटीजन्स तक पहुंचे, उसकी गारंटी देता है ये एक्ट. एंड फॉलोइंग दैट एक्ट टू द लेटर इंश्योर्स एथिकल अकाउंटेबिलिटी. और अगर नहीं करते हैं तो भैया आरटीआई लगाकर पूछा जा सकता है कि भैया आपने ऐसा क्यों किया या क्या नहीं किया आपने, राइट. एंड ऑब्वियसली अगर कुछ अनएथिकल करता है कोई सिविल सर्वेंट तो उनके एनुअल कॉन्फिडेंशियलिटी रिपोर्ट में वो मेंशन्ड होता है. एंड नाउ इट इज नॉट दैट कॉन्फिडेंशियल, बिकॉज आप आरटीआई लगाकर किसी भी सिविल सर्वेंट की एसीआर पढ़ सकते हैं, ठीक है. बट आउट ऑफ दीज टू पार्ट्स ऑफ एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इज एथिकल गाइडेंस. एंड एथिकल गाइडेंस में भी कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स, राइट. सो नाउ लेट अस स्टार्ट दैट. Code of conduct and code of ethics. Now we'll start with code of conduct and code of ethics for civil service or public service, for civil या public service. All right. So let us begin. So conduct क्या है? Now in the previous sessions we have, मैंने बहुत डिटेल में जाकर आपको कंडक्ट समझाया था क्या होता है, राइट. एंड सेम गोज फॉर एथिक्स. सो द कोड ऑफ एथिक्स, इट इज रिलेटेड विद द बेसिक वैल्यूज. इट इज अबाउट द बेसिक वैल्यूज, राइट.
and code of conduct, it is related with behavior, right? Now अगर आपको conduct की definition याद है तो हमारा voluntary moral or immoral behavior is our conduct, right? And what type of conduct we should have? We have a voluntarily we should have a moral behavior होना चाहिए हमारा. Behavior is something which is like values are abstract in nature ना. So another difference between code of ethics. Now if you are asked specifically अगर आपको code of ethics या code of conduct पर question पूछ लिया जाए, what is the difference, right? So यहाँ पर आप 3 4 5 पॉइंट जो है वो ले सकते हैं. So first point is code of ethics is basically it is about the value systems. And what are values? Values are the, क्या होती हैं values? याद होगा आप लोगों को, the moral ideals of a society. Of any given time, the moral ideals of a society are known as the values of that society, right? And these values are abstract in nature. So code of ethics is also abstract in nature, right? That means if a civil servant is following a certain code of ethics or not, or has done or not done something following a certain code of ethics or not, we will not be able to, हम उसको materially observe या experience से नहीं कर पाएंगे. Why? Because it is based on values, and values are abstract in nature. Values is not something that are material in nature, that are not concrete. Behavior is concrete. हमारी value नहीं नजर आती, हमारा behavior नजर आता है. Like now those who have attended previous sessions उनको अच्छे से समझ आ गया होगा, but जो पहली बार इस तरह की क्लास देख रहे हैं उनको मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ एक, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. बट रादर बेटर दैट यू गो थ्रू दी ऑल द प्रीवियस सेशंस, बिकॉज हमने बहुत डिटेल में समझा इसे, है ना. सो व्हेन आई से दैट कंडक्ट और बिहेवियर इज कंक्रीट और एंड एथिक्स और वैल्यूज आर एब्स्ट्रैक्ट, सो दोज हु हैव अटेंडेड प्रीवियस सेशंस उनको बिल्कुल क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं. बट एक एग्जाम्पल देता हूँ. लाइक in our society generally we have a value system or a value of respecting our elders, right? We value or respect our parents, our grandparents, so generally our elders in our family, right? So that's a value system. But आप क्या respect करते हैं अपने parents की या अपने elders की या नहीं, क्या वो value आपके अंदर है या नहीं, right? क्या एक व्यक्ति को, थर्ड पर्सन को, क्या वो आपको देखने भर से ही पता चल जाएगा क्या आपके अंदर वो वैल्यू है या नहीं? भले ही आपके अंदर वो वैल्यू हो, लेकिन क्या थर्ड पर्सन को वो नजर आ सकता है? नहीं, राइट? दैट इज वाई, मतलब इस सेंस में मैं कह रहा हूं दैट वैल्यूज आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर. दे आर प्रेजेंट बट दे आर नॉट कंक्रीट, दे आर नॉट विजिबल, राइट? सो वैल्यूज आर visible in the form of our behavior, our conduct. So when we touch the feet of our parents or our elders or our grandparents, जब हम उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, in that conduct we materialize the value of respecting our elders, right? So that is exactly what I'm trying to say, that if a civil servant has a value of integrity in them, right, or honesty or probity, probity नहीं word use करेंगे क्योंकि probity is proved integrity, and how it is proved? Because it is evident in their behavior. So probity के level पर जब हम पहुंच जाते हैं, so that is connected with our conduct, right? So whether a civil servant has the value of compassion or tolerance or impartiality or neutrality or objectivity, याद है आप लोगों को वो पूरी लिस्ट वैल्यू सिस्टम की, मोर देन 20 वैल्यूज, राइट? ऑल्दो हमारे सिलेबस में सिर्फ 5 7 8 वैल्यूज ही मेंशन्ड है, बट वी वेंट थ्रू मोर देन 20 वैल्यूज, राइट? सो probity, integrity, honesty, probity, then objectivity, neutrality, impartiality, non-partisanship, then empathy, sympathy, compassion and tolerance, right? Then accountability, transparency, responsiveness, anonymity, and so on. So all these values, whether they are present in a civil servant or not, we will not be able to judge unless it is evident in their conduct. So code of conduct is related to
behavior, whereas code of ethics is about basic values. Code of conduct is related to behavior. Since it is related to behavior, it is concrete in nature. Right? That means we can observe it, we can experience it, we can analyze it. Right? What else? So code of conduct, what is code of conduct? It is a detailed document of prescribed activities, that what a person in an organization is supposed to do or what a person is not supposed to do. So it is a prescribed, it is written document, right? It rather we can say it is a detailed document which prescribes what are the do's and what are the don'ts of working in an organization. Now that goes for, now this is not just for civil services, because we'll go into that detail. What are the code of conduct and code of ethics for civil? This is just the basic understanding of what is code of conduct and what is code of ethics. So that means these are also applicable to any of the professions, any of the organization. So अगर हम एक medical professional की बात करते हैं, so they also have a code of ethics and they also have a code of conduct. That means there are some abstract ideas, abstract values that they are supposed to follow, right, which are generally universal. Now another point that if I include under this, under code of ethics, is that code of ethics are generally universal. Generally universal, right? Like everyone in their profession is supposed to be a person of probity, or first of all honesty and then integrity and probity, right? Everyone in their profession is supposed to be objective, right? Largely objective. But that doesn't mean, that is why I use the term general, because हर प्रोफेशन पर ये फील्ड फिट नहीं होता है. Like for example, generally we can say that everyone is supposed to be compassionate or empathetic while performing their duties in any organization, but that is not true for armed forces personnel, because if armed forces personnel अगर sympathy दिखाना शुरू कर दें, वो अगर वो compassion दिखाना शुरू कर दें, तो how they will pull the trigger on orders. So for them the core value is discipline, right? So हमने fundamental value या foundational values for civil services जब topic cover किया था, तो there we went through that detail. So make sure that you go through that detail. But otherwise, generally speaking, for majority of the professions, the code of ethics is universal. There are certain values that everyone is supposed to follow, जिसमें integrity, honesty, probity तो है ही, वो तो सब पर चल जाएगा, right? But लेकिन code of conduct are highly specific. Highly specific to the nature of the job, right? That what will be the conduct of, or it is highly specific to the profession, right? Like for example, the value of honesty may vary in degree for different professions, right? The value of honesty should be at a highest level in case of a, let's say, armed forces personnel, in case of a soldier, right? But value of honesty may not be held at that higher degree in case of a, let's say, a professor, because many a times professors को negative reinforcements भी use करने पड़ते हैं अपने students को motivate करने के लिए, right? So कई बार उनको honesty से हटकर भी जो है वो कई steps उठाने पड़ते हैं. So code of conduct are very specific. हर job के लिए जो है बहुत specific code of conduct mention रहते हैं in a detailed
document. What else? Then कोड ऑफ एथिक्स को अप्लाई करने के लिए यहां लिख लेते हैं हम कोड ऑफ कंडक्ट एंड दूसरी साइड कोड ऑफ एथिक्स. As I said, code of ethics is based on values and it is an abstract nature. That means फॉलो करना कोड ऑफ एथिक्स को बहुत मुश्किल है, राइट? मैं ठीक से नहीं ये पॉइंट एस्टेब्लिश कर सका. नॉट फॉलो करना कोड ऑफ एथिक्स को बहुत मुश्किल है, बट रादर कोई व्यक्ति कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो कर रहा है या नहीं, इसको असर्टेन करना बहुत मुश्किल है अनलेस इट इज विजिबल इन देयर बिहेवियर. So code of ethics provides a framework to draw up the code of conduct, right? These are the abstract ideas जो कि materialize किए जाते हैं एक detailed document में in the form of code of conduct, right? So following the code of ethics does not have any legal, कोई legal जो है provision हो सकता है उसके behind ना हो. प्रेशर जो है वो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करने का प्रेशर जो है वो लार्जली क्या होता है, मोरल प्रेशर होता है, राइट? बट कोड ऑफ कंडक्ट सिंस इट इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिस पर साइन करके आपको फॉलो करना होता है उसे, राइट? देयर इज अ लीगल प्रेशर इन्वॉल्व हियर, लीगल प्रेशर ऑल्सो. मोरल प्रेशर तो है ही, बट कोड ऑफ कंडक्ट के केस में लीगल प्रेशर भी होता है उस प्रोफेशनल पर, राइट? देन नेक्स्ट वही एक और पॉइंट हमने वैल्यूज के लिए जो पढ़ा था, दैट वैल्यूज आर जनरली स्टेबल सो एज कोड ऑफ एथिक्स. कोड ऑफ एथिक्स आर जनरली स्टेबल इन नेचर. दैट मीन्स दे डू नॉट चेंज, दे आर नॉट डायनेमिक और हाईली डायनेमिक नहीं होते, समय के साथ बहुत जल्दी चेंज नहीं होते. इट टेक्स मेनी जनरेशन टू चेंज वैल्यू सिस्टम्स ऑफ अ जनरेशन, राइट? मैंने आपको क्या कहा, वैल्यूज क्या है, द मॉरल आइडियल्स ऑफ अ सोसाइटी, एंड इट टेक्स मेनी जनरेशंस टू चेंज दीज मॉरल आइडियल्स ऑफ अ सोसाइटी, राइट? लाइक व्हेन आई इट इज सेफ टू अज्यूम दैट यू गाइज बिलोंग टू द जेन जी, राइट? जनरेशन जी से बिलोंग करते हैं. उससे पहले जो है वो मिलेनियल्स हैं, उससे पहले जेन एक्स हैं, देन बेबी बूमर्स हैं. सो जो बूमर जनरेशन है उनका वैल्यू सिस्टम और जेन जी का वैल्यू सिस्टम जो है वो आपको उनमें चेंज नजर आएगा. एंड स्पेशली जो जेन अल्फा है अब, जो कि अभी रिसेंटली कुछ ही महीनों या सालों के हुए होंगे, मेरे ख्याल से 2020s के बाद वाली जो नए बच्चे हैं ना, उनको हम जेन अल्फा बोल रहे हैं. बट जेन जी भी 2000 वाले बच्चे जो हैं उनका वैल्यू सिस्टम जो है वो बेबी बूमर्स यानी 1950s वाले जो लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा चेंज हो गए. सो इट टुक इंटरमीडिएट 2 जनरेशंस लगी, राइट? कुछ वैल्यू सिस्टम जो है वो चेंज होने के. लाइक फॉर एग्जांपल 1950s में इंटरकास्ट मैरिज करना, लव मैरिज करना, यानी कि क्या वैल्यू सिस्टम, दैट फॉलोइंग योर ओन विल, राइट? कि आप अपनी विल को फॉलो कर रहे हैं कि भैया किससे आप शादी करना चाहते हैं. ये जो सोसाइटी में वैल्यू सिस्टम 1950s में इतना स्ट्रिक्ट था कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता था तो हमें कई केसेस, नॉट जस्ट 1950s, हमें 2000 तक, 2005, 2004, 2006, 8, 10 तक भी हमें कई इस तरह के ऑनर किलिंग के मामले जो हैं वो देखने को मिलते हैं, राइट? बहुत सारे केसेस देखने को मिले हमें. और 1950s में बहुत ज्यादा थे, धीरे धीरे कम हुए हैं. लेकिन अब आप लोग जो हैं, जेन जी जो है, मेजॉरिटी ऑफ जेन जी विल मैरी whoever they like, whoever they want to marry, right? तो वो जो वैल्यू सिस्टम है वो इतना ज्यादा स्टेबल था that it took many different type of revolutions. इकोनॉमिक रेवोल्यूशंस हुई, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस हुई, ग्लोब है ना, एलपीजी, उसके बाद पहले मैकेनिकल रेवोल्यूशन एंड देन इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रेवोल्यूशन है. कई टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस के बाद जो है वो वैल्यू सिस्टम्स चेंज हुए हैं. सो वैल्यू सिस्टम्स आर जनरली हाईली स्टेबल.
right? But code of conduct, so that means the code of ethics are generally stable. They don't change so easily. It takes many generations to change the code of ethics. But code of conduct are highly dynamic. और आप डायनेमिक लिखकर भी छोड़ सकते हैं, आप हाईली डायनेमिक भी लिख सकते हैं, राइट? बदलते हुए टाइम के साथ कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो ज्यादा तेजी से बदलता है एज कंपेयर टू हाईली डायनेमिक की जगह रादर इफ आई यूज द टर्म कंपैरेटिवली डायनेमिक है. कंपेयर करें किससे? तो कोड ऑफ एथिक्स से, राइट? सो दीज 4-5 पॉइंट्स अगर आप दोनों साइड मेंशन कर दें, सो आप एक आंसर जो है वो लिख सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स पे. अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमने एथिक्स वाले चैप्टर किए हैं पहले, मेक श्योर कि आप उसको पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड मोर पॉइंट्स टू राइट फॉर दिस क्वेश्चन. वैसे जनरली यूपीएससी डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछेगा. यहाँ जहाँ पर आपको सीधा पूछा गया कि भैया ड्रॉ अप डिफरेंस, मतलब एक कंपैरेटिव स्टडी जो है वो आप प्रोवाइड करें फॉर कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स, राइट? बट हाँ, अगर पूछ लिया जाए तो आपके पास लिखने के लिए पॉइंट्स होने चाहिए. एज अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो यू शुड हैव पॉइंट्स टू राइट, ठीक है? नाउ दैट वी नीड टू स्टडी इज द कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स इन पब्लिक सर्विस ऑब्लिक सिविल सर्विस. ये समझना है हमें. कोड ऑफ कंडक्ट पब्लिक सर्विस ऑब्लिक सिविल सर्विस, राइट? नाउ एक प्रॉब्लम मुझे जो बहुत लगती है जेन जी के साथ, अब जेन जी की बात आ ही रही है तो दैट जेन जी वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो वीडियोस को कोशिश करते हैं 1.5x 2x में देखने की. क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि टीचर ना बहुत स्लो बोल रहा है और 1.5x में जो है वो सुनकर काम चल जाता है. ऑल्दो आई ऑल्सो, मुझे ऐसा लगता है कि 1.5x पे सुनकर काम जो है वो चल जाता है, बट कोशिश ये किया कीजिए कि आप 1x पर ही देखें वीडियोस, राइट? बिकॉज जो पॉजेज होते हैं बीच में, जो अगर स्लो पेस में पढ़ा रहा हूँ अगर मैं, तो मैं जानकर स्लो पेस में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समय मिले कॉन्सेप्ट्स को एब्जॉर्ब करने का. देयर इज ओनली एक मतलब सर्टेन लिमिट तक ही एक टाइम पर आपका दिमाग जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है या एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, राइट? सो रिवीजन के लिए आप डेफिनेटली 1.5x 2x पे आप जाकर वीडियोस को देखकर रिवाइज कर सकते हैं. बट अगर आप वीडियो देख रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, इफ यू आर लर्निंग एनी कॉन्सेप्ट, कोशिश करें कि उनको उस कॉन्सेप्ट को नॉर्मल स्पीड पर ही देखें, पढ़ें, ताकि आपके दिमाग को एब्जॉर्ब करने का टाइम मिले, इंफॉर्मेशन को आप एब्जॉर्ब कर सके अच्छे से, ठीक है? नाउ कोड ऑफ एथिक्स फॉर पब्लिक सर्विस, विल स्टार्ट विद फर्स्ट विद कोड ऑफ एथिक्स फॉर पब्लिक सर्विस. कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट दोनों करने हैं हमें, बट विल स्टार्ट विद कोड ऑफ एथिक्स. फॉर पब्लिक सर्विस. Now, those who have attended my previous sessions, they very well know जब मैं public service की बात करता हूँ, that means public और civil services दोनों, right? Because public servants में दोनों political as well as permanent executives आ जाते हैं. Civil service में केवल permanent executives की बात चल रही होती है, right? और public servants में यानी जो लोक सेवक होते हैं, है ना? यूपीएससी क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं? संघ लोक सेवा आयोग, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट? सो जो लोक सेवक होते हैं, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, आर बोथ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एज वेल एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, राइट? सो व्हेन वी से कोड ऑफ एथिक्स फॉर पब्लिक सर्विस, जनरली वी मीन, और इन आवर सिलेबस what we are supposed to study is for civil services, but they are also applicable. Many of these, since code of ethics is highly universal in nature,
right? So they are also applicable for permanent political executives too, right? Now अब बात करें कि क्या हमारे सिविल सर्विसेज के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट या कोई कोड ऑफ एथिक्स मौजूद है या नहीं, राइट? सो फॉर civil services we have a specific code of conduct. As far as code of conduct is concerned, which we will study in detail, for civil services we have a specific code of conduct and it is known as the Central Civil Services Conduct Rules of 1964. Rule of 1964, and then on the basis of this फिर फॉर्म किया गया ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968, राइट? बट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमारे पास एक सेपरेट कोड ऑफ एथिक्स जो है वो पब्लिक सर्विस या सिविल सर्विसेज के लिए नहीं था. 1964 से ही हमारे पास सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स मौजूद थे एंड दैट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द संथानन कमेटी. किस पर बेस्ड है? रिकमेंडेशन ऑफ संथानन कमेटी. ठीक है, नीट पॉइंट टू कोट इन आंसर्स. एंड एक बार सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल आ गया, फिर स्पेसिफिकली ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल आए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू देन डिफरेंट स्टेट्स ने अपने अपने स्टेट्स के नाम से अपने अपने सिविल सर्वेंट्स के लिए कंडक्ट रूल्स डेवलप किए. बट फॉर अ लॉन्ग टाइम वी हैड नो specific code of ethics for public services or civil services, right? But that changed in 2014. Yeah, these are those fundamental foundational values for civil services that I mentioned earlier, right? एक बार दिख गया तो let us go through. ये यहाँ पर स्लाइड जो है वो मेंशन रह गई. So we have integrity, honesty, probity, objectivity, impartiality, non-partisanship, neutrality, empathy, sympathy, tolerance, compassion, patience, persistence, fortitude, perseverance, commitment, dedication, spirit of service, courage of conviction, accountability, responsibility, transparency, trustworthiness, and anonymity, right? So these are the foundational values for civil services. Khair. Now, what I was saying, later in 2014, with an amendment to the All India Services, with an amendment to the All India Services Conduct Rule of 1968, Code of Ethics was included at the beginning. At the beginning, Code of Ethics for Civil Services were included. So finally 2014 में जाकर हमने कोड ऑफ एथिक्स को इंक्लूड किया है. उससे पहले हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स नहीं थे, सेपरेट डॉक्यूमेंट नहीं था, मॉरल प्रेशर था, बट फाइनली उसको डॉक्यूमेंट किया गया है विद एन अमेंडमेंट ऑफ 2014 टू दी ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल ऑफ 1968, राइट? नाउ लेट अस लुक एट दी व्हाट आर दीज कोड ऑफ, क्या कोड ऑफ एथिक्स जो है वो ऐड किए गए. सो देयर आर 10 पॉइंट्स जिन पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है. ठीक है, वो 10 पॉइंट्स क्या हैं कोड ऑफ एथिक्स के, या जरूरी नहीं है कि वो इस अमेंडमेंट के फॉर्म में ही पूछें या ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल के हिसाब से ही पूछे, बट यू शुड नो दिस पॉइंट that these points are mentioned in 2024 in the all with an amendment to the All India Services Conduct Rule, right? So there are 10 points. Write these down. Write these 10 points down. What are these
code of ethics. So that means they are basically values, right? So first is, you guessed right, it is integrity and honesty. Integrity and honesty. राइट डाउन एक एक करके लिखते जाइए. Political neutrality. Now when I say political neutrality, I hope क्लियर हो जाता है आपके दिमाग में पॉइंट. हमने समझा था अच्छे से. अगर सिविल सर्वेंट्स पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं होंगे, या फॉर दैट मैटर करप्शन का इंडिया में, इन अ डेमोक्रेसी सच एज इंडिया, करप्शन कहां से शुरू हो जाता है? फ्रॉम द वेरी रूट ऑफ डेमोक्रेसी. दैट मीन्स फ्रॉम द वेरी इलेक्शन प्रोसेस से जो है वो करप्शन शुरू हो जाता है ना. मैंने आपको क्या बताया था? फॉर समवन टू बिकम एन एमएलए और एमपी, उन व्यक्तियों को क्या करना पड़ता है? हैवी खर्चा करना पड़ता है इलेक्शन में जीतने के लिए, राइट? सो प्लूटोक्रेसी, मैंने आपको बताया ना, इट इज सब सॉर्ट ऑफ प्लूटोक्रेसी. इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी. अभी डिबेट चल रहा है दैट इट इज अ प्लूटोक्रेसी, जहां पर द गवर्नमेंट इज मेड ऑफ द रिच पीपल ऑन द बैक्स ऑफ द पुअर, राइट? पुअर्स जो है वो, पुअर लोग इलेक्शन में वोट करते हैं, और कंटेस्ट जो है वो कौन कर पाते हैं? केवल रिच लोग ही कर पाते हैं. तो ये जो पूरा इंडिया की रिच अपर जो क्लास है, ये जो पूरा एक सेक्शन है सोसाइटी का, दे आर ओनली एबल टू विन इन द इलेक्शंस. कंपीट तो कोई भी कर सकता है जो भी एलिजिबल होगा, लेकिन जीत कौन पाएगा? जिसके पास पैसा होगा. तो जैसे मान लीजिए किसी ने 40-50 करोड़ रुपए लगाकर जो है वो इलेक्शन जीता भी, राइट? 5 साल के टर्म के लिए वो एमएलए एमपी बन गए. नाउ अब उनकी कोशिश क्या है? वो 5 साल में उनकी सैलरी इतनी तो होगी नहीं कि जितना पैसा लगाकर वो जीते हैं वो पैसा उनका पूरा हो जाए, ठीक है? प्लस उनकी कोशिश ये रहेगी कि 5 साल बाद वो फिर से इलेक्शन जीते. प्लस उनकी कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो पैसा इकट्ठा हो, राइट? क्यों? क्योंकि ये 40-50 करोड़ रुपए कमाने के लिए भी जो है वो सकता है बहुत सारे लोगों से प्रोमिसेस, फेवर्स वगैरह लिए हो, तो उनको भी पैसा कमा के देना है और खुद भी पैसा कमाना है, राइट? तो अगले 5 साल में 40-50 करोड़ रुपए अगर लगाया है और 100 से 150 करोड़ रुपए अगर कमाना है, तो शराफत से, ईमानदारी से तो कमाया जा नहीं सकता इतना पैसा, राइट? यानी इसके लिए करना पड़ेगा करप्शन. समझ रहे हैं? सो फ्रॉम इन आवर डेमोक्रेसी, एट द वेरी बेसिक लेवल ऑफ द डेमोक्रेसी, एट द इलेक्शन लेवल, करप्शन जो है वो शुरू हो जाता है. और अब ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो पब्लिक सर्वेंट हैं, एमएलएज और एमपीज हैं, इनको कौन हेल्प करेगा ये 100-150 करोड़ रुपए कमाने में? हो सकता है खुद से तो नहीं कमा पाए, राइट? कौन हेल्प करेगा? इनकी हेल्प करते हैं. फिर एक नेक्सस बनता है किसके बीच में? सिविल सर्वेंट्स और पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में, राइट? सो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होना जो है वो सिविल सर्वेंट्स में बहुत जरूरी है, ताकि जो चैलेंज ऑफ करप्शन है हमारी गवर्नेंस में या हमारी बेसिकली डेमोक्रेसी में, दैट इज राइट एट द वेरी बेसिक लेवल पर जो चैलेंज है करप्शन का, हम उससे डील कर सकें, राइट? सो दैट इज पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी. मेक श्योर कि प्रीवियस सेशंस अगेन देखते जाएं, रिवाइज करें, सारे पॉइंट्स जो हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे. अब अगर मैं आगे की बाकी सारी वैल्यूज लिखा दूं, अगर आपने पीछे सेशन में पढ़ा होगा, उनको अच्छे से समझा होगा, राइट? सो यू विल बी एबल टू easily understand what I'm saying. So accountability next है. Accountability, transparency and responsiveness. Right? The TRAP of good governance. Right? The स्मार्ट गवर्नेंस साइड ऑफ गुड गवर्नेंस. ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड एक एथिकल वाला पार्ट आ जाता है, दैट इज पार्टिसिपेशन. पी स्टैंड फॉर पार्टिसिपेशन, राइट? सो ये गवर्नेंस में मैंने आपको समझाया ही था. देन व्हाट एल्स? द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज.
and democratic values. Now our nation, our state was formed, our हमारे जो freedom fighters थे, they fought for what? They fought for what type? They fought for the establishment of what type of state? They fought for the establishment of a welfare state, right? A state which works for the welfare of all of its populace. And for that, our Constituent Assembly created a document which serves as the supreme law of the land. We call it our Constitution, the Constitution of India, right? And the civil servants, the civil services were present during the Britishers time too. आज हम कहते हैं ना भैया IAS ऑफिसर बनना होता है, और कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ऑफ एस्पायरेंट्स के मन में बैक ऑफ देयर माइंड जो है वो मे बी नॉट कॉन्शियसली बट सबकॉन्शियसली एक डिज़ायर होती है उनके मन में कि IAS बाबू बनेंगे, लाट साहब बनेंगे, राइट? प्रेस्टीज होगा, पावर होगा, सलाम ठोकेंगे लोग, जहाँ जाएंगे वहाँ पर लोग खड़े हो जाएंगे, ठीक है? समाज में निकलेंगे तो लोग इज्जत की नज़रों से देखेंगे, डर से भी देखेंगे, ठीक है? तो आज अगर हमें लगता है ना कि IAS अधिकारियों के पास इस तरह की शक्ति है या इस तरह का रुतबा जो है वो व्यक्ति का बनता है अगर वो IAS अधिकारी बने, तो यू हैव नो आइडिया अबाउट द पावर दैट वर पोजेस्ड बाय द ICS ऑफिसर्स. ब्रिटिशर्स के टाइम पे IAS सर्विस को कहा जाता था दी इंडियन सिविल सर्विस, और उनके पूरे एम्पायर लेवल पर कहा जाता था इसको इंपीरियल सिविल सर्विसेज. सो जो इंडियन सिविल सर्विस थी, जो दे वर दी एक्चुअल लॉर्ड साहब, दे हैड दी मैजिस्ट्रेट की पावर्स भी थी इनके पास. वो तो CRPC 1973 में जाकर जो है वो अमेंडमेंट जो हुआ है, तब मैजिस्ट्रियल पावर जो है वो अलग की गई है. उससे पहले भी मैजिस्ट्रियल पावर को काफ़ी जो है वो कंट्रोल किया गया था. लेकिन ब्रिटिश टाइम में जो ICS अधिकारी थे उनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति थी. मतलब डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई ICS अधिकारी बैठा है, वो उस डिस्ट्रिक्ट पर पूरा कंट्रोल था. लॉ एंड ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों पर पूरा कंट्रोल था उनका. सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आई विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस, लेकिन मैं एक हायरार्की बता देता हूं. तो अगर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, देन प्रोविंशियल लेवल है, एंड देन सेंट्रल लेवल है. अगर ब्रिटिश प्रोविंसेस की बात करूं इंडिया में आफ्टर 1858, राइट? सो डिस्ट्रिक्ट्स पर ICS अधिकारी, प्रोविंशियल लेवल पर बैठे थे गवर्नर्स, एंड सेंट्रल लेवल पर बैठे हैं गवर्नर जनरल, राइट? और इनका जो है वो एक डायरेक्ट लिंकेज था, ठीक है? एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ICS अधिकारियों के अलावा मैजिस्ट्रियल पावर तो उनके पास थी, लेकिन उसके अलावा कोर्ट में जजेस भी, ठीक है? एंड देन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेवल पर बड़ी कोर्ट्स जो है वो धीरे धीरे एस्टेब्लिश हुई. विल गो इनटू द मॉडर्न हिस्ट्री एंड देन आई विल एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल. ब्रिटिश वाला जो एस्पेक्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा आपको मैं. लेकिन पॉइंट यहां पर मैं ये एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं दैट द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, दीज वर नॉट प्रेजेंट इन द ICS ऑफिसर्स. ये ICS ऑफिसर्स में नहीं थी, बिकॉज ब्रिटिशर्स का स्टेट जो है वो, द British India was not a welfare state, it was a police state, right? And it was a colony, and a colony is supposed to fulfill the demands, or a colony is supposed to basically feed the metropolitan state. That means British Empire के लिए Indian territory जो है वो काम कर रही थी, not the other way around. चाहे ब्रिटिशर्स ने कितना ही प्रोपेगेंडा चलाया हो कि भैया हम वाइट बर्डन उठा रहे हैं और हम इंडियंस को सिविलाइजेशन दे रहे हैं, वैसा कुछ नहीं था. सो व्हेन वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस, ये जो ICS अधिकारियों में ये जो पावर का नशा था, राइट, जो कि ब्रिटिश पुलिस स्टेट की वजह से था, ये ट्रांसफर हो गया IAS अधिकारियों में भी आज़ादी के बाद. क्यों? क्योंकि 1947 के बाद ऐसा तो हम कर नहीं सकते थे कि भैया तुरंत जितने भी ICS अधिकारी हैं उनको बिल्कुल हटा दें, ठीक है, और नए सिरे से सिविल सर्विसेज शुरू करें. वी नीडेड एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स, राइट? सो एट वन साइड they were given what? At one side they were given protection under articles such as 3110, 311, ठीक है? And on the other side it took us
many decades to finally establish a separate code of ethics for the civil services. बट या कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो पहले हमने डेवलप कर लिया और धीरे धीरे हमने ये जो लाडशाही है आईसीएस अधिकारियों की एंड देन आईएएस अधिकारियों की, ये हमने धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश करी. बट स्टिल आज भी जो है वो कॉलोनियल माइंडसेट है कई आईएएस अधिकारियों का, राइट. अदरवाइज हु इज अ आईएएस ऑफिसर और व्हाट इज अ आईएएस ऑफिसर और व्हाट डज एन आईएएस ऑफिसर रिप्रेजेंट्स? IAS officer is nothing but an agent of a welfare state. ठीक है, लाड साहब नहीं है IAS ऑफिसर. IAS ऑफिसर एक एजेंट है वेलफेयर स्टेट का, एंड दैट वेलफेयर स्टेट इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट वेलफेयर स्टेट फॉलोज अ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल. सो द सिविल सर्वेंट्स आर सपोज टू follow these or supposed to work under the supremacy of constitution and uphold the democratic values. What else? Now civil servants are supposed to work in taking decisions solely based on public interest. ना ही अपने इंटरेस्ट में, ना ही अपने सीनियर के, ना अपने जूनियर के, ना पॉलिटिकल पार्टी इन पावर के, ना पॉलिटिकल पार्टी इन ऑपोजिशन के, ना अपने परिवार वालों के, ना अपने रिश्तेदारों के, ना अपने दोस्त के, ना अपने दुश्मन के. किसी के इंटरेस्ट में डिसीजंस नहीं लेने हैं. डिसीजंस लेने हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, जो जनता के लिए बेहतर है वही करना है, while staying under the supremacy of constitution, right, and the laws and the statutes. Then next is the effective economic and efficient use of public resources. जहां पर एक गाड़ी से काम चल रहा है वहां पर एक गाड़ी ही इस्तेमाल की जाए. जहां पर 2 पंखों से काम चल रहा है वहां पर 2 पंखे 4 एसी लगाने की जरूरत नहीं है. सो इफेक्टिव इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, जितना ज्यादा हो सके पब्लिक रिसोर्सेज का EEE यूज जो है वो किया जाए, राइट. व्हाट एल्स? और क्या पॉइंट आप जोड़ सकते हैं यहां पर? अपहोल्डिंग सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन. हियर जब मैं बोलता हूं इंटेग्रिटी, सो दैट मीन्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी ऑफ नेशन. व्हाट एल्स? और क्या पॉइंट आप यहां पर 10 पॉइंट हमने जोड़ने हैं. देन मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज सपोज टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, राइट. ऑल्दो यहां पर मैंने ट्रांसपेरेंसी पॉइंट लिखा है कि ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है, लेकिन एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी नहीं है, because there are many such sensitive informations that are supposed to be kept confidential. So confidential, make sure ensuring confidentiality of information or ensuring confidentiality of required, जो भी required information है, right. Like सिंपल सी बात है, अगर कोई पॉलिसी बन रही है, अगर कोई प्रोग्राम बन रहा है, अगर कोई प्लानिंग चल रही है और वो अभी प्लानिंग के स्टेज पे है, राइट, लेकिन उसकी अगर डिटेल्स लीक हो जाए, लाइक फॉर एग्जांपल हाईवे बनना है और ये डिटेल लीक हो जाए कि भैया कहाँ ज़मीन एक्वायर की जाएगी, लाइक दिस इज द पैच ऑफ लैंड और यहाँ से हाईवे बनेगा ऐसे, ठीक है, एंड दिस इज अ रूरल एरिया. अभी ये प्लानिंग के फेज में है और अगर प्लानिंग के फेज में ये बात लीक हो जाएगी भैया इस एरिया में ज़मीन जो है वो इस गाँव में ज़मीन खरीदी जानी है हाईवे बनाने के लिए, ठीक है. तो और अगर सिविल सर्वेंट्स के पास डेफिनेटली इंफॉर्मेशन होती है जब वो पॉलिसी बना रहे होते हैं, तो अगर वो इस इंफॉर्मेशन को बेचें बिल्डर्स को, राइट, तो बिल्डर्स विल डू व्हाट? बिल्डर्स विल ट्राई टू बाय ऑल ऑफ दिस लैंड, राइट, ठीक है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बाद में इस लैंड को लोगों से खरीदने वाली थी, लेकिन बिल्डर्स पहले ही इस लैंड को जो है वो खरीद लेंगे, सारी लैंड खरीद ली, राइट. एंड देन गवर्नमेंट जब बेचने आई
तो अगर मान लीजिए 1 करोड़ पर एकड़ के हिसाब से खरीदी उन्होंने, तो गवर्नमेंट जो है वो बदले में उनको 10, 12, 15 करोड़ पर एकड़ के हिसाब से पैसा दे रही है। तो 1:10 का जो है हो सकता है उनको प्रॉफिट हो रहा हो, राइट। सो इस तरह की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जरूरी नहीं है कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की जब भी हम बात करते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी ही मामला है, नेशनल सिक्योरिटी तो है ही, लेकिन राइट फ्रॉम द लेवल ऑफ प्लानिंग, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल ऑफिस रेनोवेशन का काम है और ऑफिस रेनोवेशन में लेट्स से बिजली का काम होना है, ठीक है, और ये बात जो है वो सिविल सर्वेंट ने लीक कर दी कि भैया बिजली की तारें जो है वो रिवायरिंग करवानी है पूरे ऑफिस की, या पूरे शहर में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है रिवायरिंग करवानी है उनकी, या जो भी पुराने ऑफिस है उनकी। ये बात ठेकेदार को पता चल गई। अब ठेकेदार जो है पहले से ही सामान उन्होंने होल्ड करके रखना शुरू कर दिया, वायर्स, राइट। और खुद ही वेंडर बन के बैठ गए, और जब सरकार खरीदने आई तो 10 रुपए का माल सीधा 150 रुपए में चिपका रहे हैं, ठीक है। सो जब मैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कह रहा हूं तो यहां पर इट डजंट ओनली मीन द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, इट मीन्स द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, मतलब स्पेशली ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड जो प्लानिंग फेज ऑफ एनी प्रोग्राम और पॉलिसी, right? Then what else? Highest degree of professionalism. Then not to abuse discretion, because civil servants many a times they find themselves in a place where the laws हैं, जो rules हैं, right, जो भी statutes हैं, हो सकता है they present a gray area, right, where either they are mute or there is no such law, rule, regulation, ऐसी कोई नई situation सामने आती है जिससे डील करने के लिए कोई प्रेसिडेंट नहीं है, राइट, कोई लॉ नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन अवेलेबल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेशन, कोई एसओपी अवेलेबल नहीं है। ऐसे में सिविल सर्वेंट को अपना डिस्क्रेशन यूज करना पड़ता है, राइट। सो उस डिस्क्रेशन का अब्यूज ना करना, नॉट टू अब्यूज द डिस्क्रेशन इन केस ऑफ ग्रे एरिया कैन बी इंक्लूडेड। अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट आप यहां पर अनोनिमिटी भी जोड़ सकते हैं, राइट। अनोनिमिटी का मतलब क्या होता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सिविल सर्वेंट है ना, कोई एक आईएएस अधिकारी है, और अगर कोई एक पुलिस ऑफिसर उस आईएएस अधिकारी को सल्यूट कर रहा है, तो वो XYZ आईएएस अधिकारी को सल्यूट नहीं मारा जा रहा है, वो ABC पोजीशन को सल्यूट मारा जा रहा है, राइट। तो रिस्पेक्ट व्यक्ति की नहीं, रिस्पेक्ट पोजीशन की जाती है, रैंक की रिस्पेक्ट की जाती है। तो व्हेनेवर अ सिविल सर्वेंट डज समथिंग गुड, और कोई बहुत मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कोई थिंकिंग की उन्होंने, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा एंड फाउंड सोल्यूशन टू समथिंग, राइट, अ क्रिएटिव सोल्यूशन टू अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ठीक है, और फिर उसको अपना नाम लेकर वो सोशल मीडिया पोस्ट छाप रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। सिविल सर्वेंट्स आर सपोज टू बी अनोनिमस, राइट। पब्लिसिटी की जाए, डेफिनेटली की जाए कि भैया ये प्रॉब्लम थी और ये हमने सॉल्व कर दी, लेकिन अनोनिमस रहकर, यानी कि ये प्रॉब्लम थी और गवर्नमेंट ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ये प्रॉब्लम थी और डीसी ऑफिस ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ना कि डीसी अपना नाम लिखकर कहें कि भैया XYZ व्यक्ति ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी। नहीं, डीसी ऑफिस ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, या प्रशासन ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, एडमिनिस्ट्रेशन ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, या गवर्नमेंट ने ये काम किया है, राइट, ना कि व्यक्ति को श्रेय दिया जाए। पॉलिटिक्स में होता है वो, राइट, मोदी गवर्नमेंट डिड दिस और डिड दैट, रादर इंडियन गवर्नमेंट डिड दिस और डिड दैट, राइट। पॉलिटिक्स में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। होना क्या चाहिए? अनोनिमिटी होनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर दी कोड ऑफ एथिक्स, 10 पॉइंट आप लिख सकते हैं, दैट आर मेंशन्ड, that were included as an amendment to the All India Services Conduct Rule 1968 in 2014.
right? Then what are the code of conduct for public service or civil service? क्या कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है? सो एज आई सेड दैट जो सिविल सर्विसेज हमने रिसीव करी, इट इज अ कॉलोनियल लेगेसी. ब्रिटिशर्स मेड दिस सिविल सर्विसेज. अब वो कैसे डेवलप हुई है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में समझाऊंगा. बहुत इंटरेस्टिंग है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की कहानी, है ना. सो इट वाज व्हाट, इनिशियली 1860 में एक एक्ट आया था. 1860 से ही शुरू कर लेते हैं, वैसे उससे पहले का भी है, लेकिन 1860 से शुरू कर लेते हैं. नाउ कोड ऑफ कंडक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? टू कंट्रोल करप्शन. कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत क्यों है? ताकि करप्शन जो है वो सिविल सर्वेंट्स ना करें, राइट. सो टू कंट्रोल करप्शन देयर वाज आईपीसी 1860. एंड आईपीसी के आपको सेक्शंस याद होंगे, राइट, लाइक सेक्शन 409 याद है आपको, सेक्शन 409. एंड देन सेक्शन 162 से 165 विच वर देन रिमूव्ड. आईपीसी से इसको बाद में रिमूव कर दिया गया था 1988 में और इंक्लूड किया गया इसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, राइट. देन सेक्शन 409 ऑफ आईपीसी इज स्टिल प्रेजेंट, लेकिन अब ये किस में है? बीएनएस में है. सेक्शन 409 के अंडर ही, राइट. दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. एंड सेक्शन 162-65 इट इज रिलेटेड टू करप्शन. सो टू कर्ब करप्शन वी हैड आईपीसी और अब हमारे पास बीएनएस है, ठीक है. देन 1947 में आया करप्शन को कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, राइट, जिसको 1988 में अमेंड किया गया. फिर उसके बाद 2018 में जो है वो फिर से अमेंड किया गया. बट जनरली हम इसको बोलते हैं द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988, राइट. और क्या क्या मैकेनिज्म्स है हमारे पास मौजूद करप्शन को कंट्रोल करने के लिए या कोड ऑफ कंडक्ट के लिए रादर. सो हमारे पास आया भैया सिविल सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल ऑफ 1964. देन ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल ऑफ 1968 एंड देन इट्स अमेंडमेंट इन 2014. सो दिस मच वी हैव. इस ये जो है वो हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म जो मौजूद हैं फॉर कोड ऑफ कंडक्ट, जिनमें से स्पेसिफिकली हमें पढ़ना है इन दोनों को. दी सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 जिस पर बेस्ड है ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल ऑफ 1968, राइट. So these code of conduct that are mentioned under these rules are divided into 4 parts. Part number 1 is the code of conduct in personal life. Code of conduct in the personal life of a civil servant. Then code of conduct in the public life of a civil servant. Then code of conduct of the work life of a civil servant. And fourth is the code of conduct related to the financial matters of the civil servant, right. So ये 4 पार्ट में जो है वो मेंशन्ड है कोड ऑफ कंडक्ट. हम एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे, ठीक है. सो स्टार्टिंग विद द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पर्सनल लाइफ ऑफ अ सिविल सर्वेंट. कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पर्सनल लाइफ. सो राइट डाउन दीज पॉइंट्स, डायरेक्ट पॉइंट्स हैं. सबसे पहले, अ सिविल सर्वेंट इज नॉट सपोज टू are not supposed to perform bigamy. Bigamy
या पॉलीगैमी यानी कि मल्टीपल वाइफ्स जो है वो सिविल सर्वेंट्स की नहीं होनी चाहिए, राइट। अब आप कहेंगे कि सर इन इस्लाम देयर इज अ प्रोविजन फॉर हैविंग मल्टीपल वाइफ, 4 up to 4 वाइफ्स, राइट। तो जो मुस्लिम सिविल सर्वेंट्स हैं क्या वो 4 वाइफ्स नहीं रख सकते थे? यस दे कैन 4 वाइफ्स नहीं रख सकते थे। ये बहुत डेरोगेटरी स्टेटमेंट है। मेरा पेट्रियार्कल माइंडसेट जो है वो एकदम एक्टिवेट हो जाता है कई बार, समझ रहे हैं। पेट्रियार्की इतनी डीप रूटेड है हमारी सोसाइटी में कि हमारी लैंग्वेज पर इतनी हावी है, ठीक है। खैर माय पॉइंट इज, पहली बात तो बाइगमी या पॉलीगैमी जो है वो आप परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप करना भी चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। इफ इट इज मेंशन्ड लेट्स से इन योर रिलीजन और योर रिलीजियस टेक्स्ट, सो नॉट अंटिल you have the approval of government, right। ऑल इंडिया सर्विसेज तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की अप्रूवल जब तक आपको नहीं मिलेगा आप बाइगमी परफॉर्म नहीं कर सकते। सेकंड, इन योर पर्सनल लाइफ। नाउ अच्छा एक चीज तो मैंने मेंशन करी नहीं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल लाइफ एंड पब्लिक लाइफ एंड वर्क लाइफ एंड फाइनेंशियल मैटर्स, क्या होता है ये समझ लेते हैं, देन विल एंटर इनटू फर्दर पॉइंट्स। So what is your personal, or rather let us understand the difference between personal life and public life, right? So your personal life, that is the life that you have in relationship with yourself, in relationship with your family, in relationship with your close friends, right? That is your personal life. In relationship with your friends, kinship, your close friends, sorry, in relationship with yourself, your family, your kinship, your close friends, that is your personal life, right? Your public life is your life where you have relationships with your acquaintances. Your friendship यानी कि दोस्ती, मित्रता, और acquaintance का मतलब होता है जान पहचान होना, right? So your relationships with your acquaintances, your रिलेशनशिप विद अदर पीपल, मतलब जो जनरल पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है उसके साथ जो आपका, बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी, वी लिव अंडर अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो योर रिलेशनशिप और एनीवन्स रिलेशनशिप विद द जनरल पब्लिक इज देयर पब्लिक लाइफ, राइट। योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ, योर फैमिली, योर किनशिप एंड योर क्लोज फ्रेंड्स इज योर पर्सनल लाइफ। वर्क लाइफ, एज द नेम सजेस्ट, योर रिलेशनशिप इन योर प्रोफेशनल लाइफ, and financial matters is I think self explanatory, right? So जब हम पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं तो भैया शादी के लेवल पर, ठीक है। सो शादी से हम फैमिली क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो बाइगमी आप फॉलो नहीं कर सकते, पॉलीगैमी फॉलो नहीं कर सकते। सेकंड, आप डाउरी नहीं ले सकते, कोई दहेज नहीं लेना है, ठीक है। मे बी फ्यू एक्सेप्शन, फ्यू मतलब गिफ्ट्स गिवन टू, जो स्त्री धन होता है, गिवन टू दी your partner if you are a male civil servant, right? Or if you are female civil servant, if you receive as certain items from your parents side, right, as stridhan, perhaps that is allowed, but other than that, if you are getting anything kind or cash in the name of dowry, that is not accepted, that is not allowed, right? Then another thing is no intoxication. In code of conduct, civil servants are supposed to be sober people, right? No intoxicant, no consumption of intoxicants of any kind, whether it is a drug or unprescribed drug, because जब हम drug word use करते हैं ना तो हम basically narcotics की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। drugs जो है वो medicines होती हैं drugs, right? बट जनरली आम लेमन भाषा में जब हम ड्रग्स वर्ड यूज करते हैं तो व्हाट वी मीन इज नार्कोटिक्स, द इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस, राइट। और जब हम ड्रग्स बोलते हैं तो जनरली वी डू नॉट इंक्लूड अल्कोहल। पीपल डू नॉट कंसिडर अल्कोहल टू बी अ ड्रग, जबकि अल्कोहल इज अ वेरी सीरियस ड्रग और अ सीरियस इंटॉक्सिकेंट और अ सीरियस नार्कोटिक. It is addictive, so it is a narcotic.
narcotic are the substances which are addictive in nature. Psychotropic narcotics are the substance which mess up with your brains और neurons के साथ mess up करते हैं, that alters your reality, that takes you a trance level पर, trance state में जो आपको ले जाते हैं. Those are psychotropic narcotic substances. So no intoxication of any kind, whether it is allowed or not allowed in a state, right? In a state such as, let's say, Bihar, if you are a civil servant in a Bihar, by rule you are not supposed to drink alcohol or promote consumption of alcohol, right? As far as केवल alcohol की बात करें. And as far as narcotics are concerned, so generally all the narcotics are banned, right? Until unless they are prescribed by a doctor. Although narcotics are not prescribed by the doctor, drugs are prescribed by the doctors, right? Medicine जो है वो doctors prescribe करते हैं, but there are certain schedule H drugs उन्हें कहा जाता है. There are certain medicines जो कि क्या होती हैं, एडिक्टिव नेचर की होती हैं, नार्कोटिक्स की तरह यूज की जा सकती हैं, राइट? सच एज पेन किलर्स और एंटी एंजाइटी मेडिसिन, ठीक है, जिनको अब्यूज करने में, अब्यूज करके आप नशा कर सकते हैं और वो एडिक्टिव होती हैं हाईली, बिकॉज जनरली दे आर बेस्ड ऑन, इधर दे आर बेस्ड ऑन ओपियम, ओपियोइड्स पर बेस्ड होती हैं, और दे आर बेस्ड ऑन मेथाफेटामीन, सो एम्फेटामीन्स पर बेस्ड होती हैं. एक आजकल बहुत फेमस है द स्टडी ड्रग के नाम से, उसको स्टूडेंट्स कंज्यूम कर रहे हैं दिल्ली में, पेपर से पहले जो है वो बच्चे ले रहे हैं. एडरोल नाम की एक ड्रग होती है, राइट? सो अगर कोई ड्रग, कोई इंटॉक्सिकेंट, चाहे वो लीगल है चाहे वो लीगल नहीं है, until unless it is prescribed by the doctor that you are supposed to consume this drug, आप जो है वो किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेंट कंज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है? दैट इज मेंशन्ड अंडर द कोड ऑफ कंडक्ट, चाहे वो लीगल हो या ना हो. लाइक फॉर एग्जांपल, बिहार में जो सिविल सर्वेंट है और हिमाचल प्रदेश में जो सिविल सर्वेंट है, बिहार में अगर देयर इज अ बैन ऑन कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल और सेल ऑफ एल्कोहल, और अगर हिमाचल प्रदेश में इस तरह का बैन नहीं है, तो सिविल सर्वेंट इन सर्विस इन हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो नॉट सपोज टू कंज्यूम एल्कोहल, right? Let alone Bihar. Another point what you can include is no child labor at home. आपके घर में 14 साल से कम का बच्चा जो है वो काम करता हुआ नहीं होना चाहिए. आप वेलफेयर स्टेट के एक एजेंट है, आप लोगों को सिखाएंगे कि चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया जाए, आपके घर में नहीं होने चाहिए चाइल्ड लेबर, ठीक है? देन no misuse of power for relatives, no adultery, right? No misuse of power, right? No peddling of influence, no adultery, no misuse of power. Adultery का मतलब क्या होता है? Basically, let's say a civil servant is married, and at the side that civil servant is having a affair with multiple people, or let's say one or few people, right? That's adultery. So they are not supposed to be adultery, because a civil servant is supposed to live an exemplary life. They're supposed to be a beacon of hope. The beacon of hope to thoda zyada ho gaya. They're supposed to be leaders of the society. People look up to civil servants. और अगर सिविल सर्वेंट्स ही कहीं शराब पीकर पड़ा है नाली में, सिविल सर्वेंट ही दहेज लेता हुआ पकड़ा गया, सिविल सर्वेंट ही जो है वो घर में चाइल्ड लेबर रखे हैं उसने, सिविल सर्वेंट ही जो है वो लॉयल नहीं है अपने मैरिजेस में, राइट? सो व्हाट विल द सोसाइटी लर्न फ्रॉम देम, राइट? बिकॉज सोसाइटी होल्ड्स द सिविल सर्वेंट्स एट हाई रिगार्ड्स, है ना? ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, ठीक है? मामूली सा पटवारी होता है विलेज में, लोग उस मामूली से पटवारी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं. तो गांव के व्यक्तियों के लिए, देहात के व्यक्तियों के लिए एक डीसी तो जो है वो माई बाप, समझ रहे हैं, तो राजा के बराबर होता है उनके लिए. सो एक एग्जाम्पलरी, एक एग्जाम्पल जो है वो अपने एरिया में एक मॉडल सिटीजन, एक एग्जाम्पल की तरह जो है वो बनना होता है एक सिविल सर्वेंट को. सो इन देयर पर्सनल लाइफ ऑल्सो दे सपोज टू फॉलो सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट, राइट? देन द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पब्लिक लाइफ.
what are they? The very first is should not criticize the government or policies of government. गवर्नमेंट और इट्स पॉलिसीज. सिविल सर्वेंट ही अगर मान लीजिए सोशल मीडिया पे जाके या लोगों के सामने जाकर, राइट, योर सोशल मीडिया, although civil servants are supposed to be away from their social media, right, लेकिन still they can have social media accounts and many government agencies, government offices के नाम पर जो है वो ट्विटर हैंडल्स होते हैं, फेसबुक पेजेस होते हैं, जहां पर टू स्ट्रीमलाइन दी गवर्नेंस पार्ट, राइट, जल्दी से आप वहां पर कंप्लेंट डाल सकते हैं, वो कंप्लेंट जो है वो तुरंत ऑफिस तक पहुंच जाती है, तुरंत जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तक पहुंच जाती है, दे कैन टेक स्विफ्ट एक्शंस. सो इन प्रेजेंट डे एंड एज हैविंग अ सोशल मीडिया अकाउंट इज नॉट जस्ट नेसेसरी, इट इज एक्चुअली एक प्री रिक्विजिट बन गया है फॉर गुड गवर्नेंस प्रेजेंट डे टाइम में, राइट. और उसी सोशल मीडिया पे आकर अगर सिविल सर्वेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आकर अगर कुछ बोलता है, सो दैट इज अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट. दे आर नॉट सपोज टू डू दैट, राइट. दे सपोज टू बी इन फुल सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज, राइट. देन they are not supposed to indulge into politics, so no participation in politics. So political neutrality or non partisanship, right. बस इतना वो अपनी, तो आप कहेंगे कि सर किसी भी तरह की पॉलिटिकल पावर्स जो है वो नहीं होती है सिविल सर्वेंट के पास. सो या सॉरी नॉट पावर, पॉलिटिकल राइट नहीं होता सिविल सर्वेंट के पास. तो एक राइट है उनके पास, दे हैव द राइट टू कास्ट वोट. सो एक्सेप्ट कास्टिंग वोट इन इलेक्शंस. So they can cast votes in elections, but they are not supposed to tell, even they are not supposed to tell anyone that they have मतलब किस पार्टी को उन्होंने वोट दिया है, किस कैंडिडेट के लिए उन्होंने वोट दिया है. जनरल पब्लिक जो है वो जाकर बोलती है दैट हमने जो है वो वोट दिया, देखिए हम इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, या हमने इस व्यक्ति को, इस कैंडिडेट को वोट दिया. सिविल सर्वेंट्स आर नॉट सपोज टू डिक्लेयर, राइट, कि उन्होंने वोट किसको दिया है. उसके अलावा जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, दे आर नॉट सपोज टू बी पार्ट ऑफ एनी सच पॉलिटिकल एक्टिविटी. लाइक लेट्स से किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली चल रही है और उस रैली पे आकर जो है वो वहाँ उस जिले के जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब जो है वो पहले भाषण दे रहे हैं, ठीक है, इस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जो है वो बता रहे हैं, क्या कैंडिडेट के बारे में बता रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं. नहीं, किसी भी तरह का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं है एज पर कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सेप्ट दैट दे कैन कास्ट वोट. और वहां पर भी क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, दैट दे कैन नॉट डिक्लेयर whom they have voted for, right. Now next is they are not supposed to express views in public forum. Not to express their own views in public forum such as social media हो, चाहे वो कहीं स्टेज ही, बिकॉज एज अ सिविल सर्वेंट कई जगहों पर आपको इनवाइट किया जाएगा, राइट. तो देयर यू आर नॉट सपोज टू एक्सप्रेस योर व्यूज इन पब्लिक, राइट. चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो आप लाइव जो है वो आकर कहीं पर खड़े होकर भाषण दे रहे हो, एक्सेप्ट फ्यू सब्जेक्ट्स सच एज एक्सेप्ट फॉर आर्ट्स, for literature, for science and tech. In fact, civil servants are supposed to be vocal about science and tech, arts and literature, right. And apart from that, if they have gained permission, right, to speak or to express their views about any of the topic, then they can express their views. Other than that, they cannot express their views on any topic, whether it is politically whether the topic is related with politics or with social issues or with religion, right. Except arts, literature and science and tech, जहां पर उन्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है,
उसके अलावा वो बाकी मुद्दों पर भी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, लाइक अखबार में कई सिविल सर्वेंट्स जो है वो उनके आर्टिकल्स मैगजीन्स में, वेबसाइट्स पर, ब्लॉग्स के माध्यम से अखबार में जो है वो छपती हैं, ठीक है, तो वो एक अपने व्यूज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते कहीं भी। देन उसके अलावा नो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इन पब्लिक, पब्लिक लाइफ में कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है उन्होंने। देन नो पब्लिक स्टेटमेंट विच कैन स्टर अप सम इशू, कोई पॉलिटिकल, रिलीजियस या सोशल इश्यूज जो है वो अगर क्रिएट कर सकता है कोई स्टेटमेंट, सो दे आर नॉट सपोज टू पब्लिश सच स्टेटमेंट्स। सो नो पब्लिक स्टेटमेंट। One second. That can create tensions, right? सोशल पॉलिटिकल टेंशन जो क्रिएट कर सकते हैं, लाइक रिलीजन पर बोल दिया, ठीक है, या सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे बोल दिया, स्टेट स्टेट रिलेशनशिप पे बोल दिया, और उसके अलावा लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, इंडिया और वर्ल्ड, सो इस तरह के कोई भी जो इश्यूज है, पॉलिटिकल जो इश्यूज है, उस पर कोई पब्लिक स्टेटमेंट आपको नहीं देना है, ठीक है। सो ये हो गया पब्लिक लाइफ के लिए। देन ऑफिशियल लाइफ के लिए क्या है? ऑफिशियल लाइफ या वर्क लाइफ के लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट है? तो सबसे पहले तो that you are supposed to follow the direction of the seniors, especially the written direction. Whatever your seniors आपको जो भी सजेस्ट करते हैं, जो भी आपको ऑर्डर्स देते हैं, आप उन्हें फॉलो करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बार रिटर्न आपको ही जो है वो ऑर्डर्स प्रोवाइड किए जाए, ठीक है। अगर कोई सीनियर आपको डायरेक्शन दे रहा है, यू कैन आस्क फॉर अ रिटन ऑर्डर, एंड इफ दे से दैट यस विल प्रोवाइड यू दिस इन रिटन, बट राइट नाउ इट इज टाइम सेंसिटिव, सो यू वर्क ऑन इट, लेटर ऑन देयर ऑफिस विल प्रोवाइड यू द रिटन डॉक्यूमेंट, देन यू आर सपोज टू फॉलो। और अगर कोई रिटन डॉक्यूमेंट आता है, देन यू आर डेफिनेटली सपोज टू फॉलो व्हाट इज डायरेक्टेड बाय योर सीनियर ऑफिसर, राइट। देन नेक्स्ट इज वाइज यूज ऑफ डिस्क्रेशन, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम सिविल सर्वेंट्स जो है वो उनको अपनी डिस्क्रेशन यूज करने का मौका मिलता है जहां पर ग्रे एरियाज होते हैं, तो वहां पर डिस्क्रेशन का एथिकली, मॉरली जो है वो यूज किया जाना चाहिए। देन नॉट टू पुट एनी एक्सटर्नल प्रेशर ऑन सीनियर्स, राइट। ऐसे नहीं कि भैया चचा विधायक हमारे, ठीक है, और अपने सीनियर्स पर आप प्रेशर डलवा रहे हैं, राइट। सो नो एक्सटर्नल प्रेशर्स ऑन सीनियर्स। व्हाट एल्स, और क्या इंक्लूड कर सकते हैं आप? अच्छा, ऑलवेज फॉलो प्रॉपर चैनल फॉर ग्रीवांसेस, फॉलो द प्रॉपर चैनल, राइट। सो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक मिनिस्ट्री के अंदर जो हर एक डिपार्टमेंट्स में जो है वो प्रॉपर चैनल्स मेंशन्ड है, ठीक है। दैट अगर किसी सिविल सर्वेंट को कोई इश्यू होता है तो वो इस प्रॉपर चैनल के तहत जो है वो अपने ग्रीवांसेस को एड्रेस करवाए, राइट। ऐसा नहीं है कि सीधा मुंह उठा के सिविल सर्वेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया या हाई कोर्ट पहुंच गया मामले को लेकर, नहीं। दे आर सपोज टू फॉलो प्रॉपर चैनल्स, बिकॉज देयर आर प्रॉपर चैनल्स। हो जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं, राइट, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं, या उसके अलावा इन हाउस कमिटीज होती हैं,
अच्छा, नो सेक्सुअल हरासमेंट, नो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ एनी काइंड, either no sexual harassment of any kind. They are not supposed to sexually harass anyone, and they are not supposed to sexually harass anyone, and at the same time they are supposed to prevent sexual harassment. ठीक है, neither do nor allow, right? Then not to transfer your duties to private individual. ड्यूटीज टू प्राइवेट इंडिविजुअल. इसका क्या मतलब होता है? लाइक एक मैंने एग्जाम्पल देखा था इसका, जो कि बहुत मुझे खतरनाक एग्जाम्पल लगा. व्हेन आई यूज्ड टू लिव इट शिमला ना, सो देयर वाज, मतलब जो वहाँ पर एमसीडी था, उसमें जो झाड़ू लगाने वाले कर्मचारी थे, राइट, क्योंकि हर रोज सुबह सड़कें साफ की जाती थी, घर घर आकर जो है वो कूड़ा इकट्ठा किया जाता था. तो वो जो गवर्नमेंट पोजीशन थी, या ऑफिसेज में पीएन की भी कई बार जो पोजीशंस होती हैं इस तरह की, राइट, सो जो स्वीपर की पोजीशन थी, उसमें वो पोजीशन जिस व्यक्ति को अलॉट हुई, राइट, वो व्यक्ति क्या कर रहा है? लेट्स से उस व्यक्ति को 10,000 में वो पोजीशन अलॉट हुई, सैलरी मिल रही है, तो व्यक्ति 4,000 जो है वो किसी और व्यक्ति को दे रहा है, 6,000 अपने पास रख रहा है. सो दैट दे डेलीगेटेड देयर ड्यूटीज टू प्राइवेट इंडिविजुअल. और किस तरह का प्राइवेट इंडिविजुअल? अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ कास्ट ट्रेडिशनली दोज हु वर सपोज्ड टू वर्क एज स्वीपर्स. उस व्यक्ति को जो है वो उन्होंने अपनी सैलरी में से कुछ एक हिस्सा दे दिया, और खुद जो है वो अलग कहीं और धंधा कर रहे हैं. ठीक है, सो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. ऑन द सेम लाइन, सिविल सर्वेंट्स आर नॉट सपोज्ड टू ट्रांसफर देयर ड्यूटीज टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स, राइट. लाइक फॉर एग्जांपल, सिविल सर्वेंट supposed to they are supposed to do a lot of work, right? Let's say they are supposed to conduct a meeting, जहां पर उन्होंने ठेकेदारों से जो है वो डिस्कशन करना है कि भैया किस तरह की, मतलब क्या, क्योंकि सोशल ऑडिट में केवल आम जनता ही नहीं, ठेकेदार भी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, राइट. तो वहां पर जो है वो खुद बैठने की जगह सिविल सर्वेंट जो है वो किसी और बड़े बिल्डर को वहां बिठाए अपनी जगह, कि तुम बैठो और इन ठेकेदारों की बात सुनो कि भैया प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ शुरू हुआ, और कितना माल लगे, कितना मटेरियल लगे, कितनी कहाँ से मजदूर उठाना है, कितना पैसा लगना है, कितना जाना है, राइट. तो बड़े बिल्डर को बिठा दिया अपनी जगह, और उनसे पैसे ले लिए कि तुम इनसे डील भी कर लो और विल पास योर प्रोजेक्ट, राइट, या प्रोजेक्ट जो है वो, या टेंडर आपको दिलवा देंगे हम. सो इस तरह की नहीं बननी चाहिए सिम्बायोसिस, राइट. या ट्रांसफर ऑफ ड्यूटीज नहीं करनी है किसी और प्राइवेट इंडिविजुअल को. ठीक है, उसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हैं. ठीक है, मेक श्योर कि आप उन्हें खोजें अपनी तरफ से, इंक्लूड करें यहाँ पर. द नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट. वन सेकेंड. इन फाइनेंशियल मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स में क्या कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सिविल सर्वेंट्स आर सपोज टू फॉलो, राइट. राइट दिस पॉइंट डाउन. फर्स्ट इज they are supposed to take the due care of the public money, because they are the agent of the welfare state, and a lot of money is in the hand of the civil servant, right. हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक साल के लिए महीने के हिसाब से जो है वो बहुत ज्यादा पैसा जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो डीसीडीएम होते हैं, उनके हाथ में होता है अलॉट करना. करोड़ों में होती है अमाउंट. तो इस पब्लिक मनी का मिसयूज जो है वो करते हैं, कई करप्ट ऑफिसर्स करते हैं. तो दे आर नॉट सपोज टू मिसयूज दी पब्लिक मनी,
right? Because they are the since they are the agents of civil agent of welfare state, they are the custodian of this money. This money, why it is called the public money? Because जनता का ही है ये पैसा, उन्हीं के टैक्स का पैसा होता है, and they are only the custodian of this money. They need to act according to that, right? Now next is no personal dealings with, basically no personal dealings, right? Like let's say पुराने हो गए, किसी डिस्ट्रिक्ट में आप मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है और उन्होंने जो है वो ये प्रोग्राम बनाया कि जितना भी पुराना हो गया ना फर्नीचर सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में, वो हमने फर्नीचर जो है वो चेंज करना है, ठीक है। अब इसके लिए उन्होंने जो है वो टेंडर निकाला कि भैया कहाँ कहाँ जो है वो कितना, मतलब बताइए, है ना, गांव उस शहर के, उस डिस्ट्रिक्ट के या आसपास के बड़े डिस्ट्रिक्ट के कई जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स आए कि भैया, और बड़े बड़े कारपेंटर्स आए कि हम जो है वो बना देंगे आपके लिए, ठीक है, 5,000 चेयर लगेंगी, 10,000 टेबल लगेंगे, जैसा भी है, राइट। वैसे होता नहीं है इतना बड़ा नंबर, बट लेट्स से 1,000 टेबल्स हैं और 5,000 चेयर्स का जो है वो टेंडर जाना है। अब मान लीजिए कि जो सिविल सर्वेंट हैं उनके कोई रिश्तेदार हैं जो भी जो है वो इस तरह की बड़ी उनकी फर्नीचर की शॉप है, राइट, या उनके कोई नोन है। सो ऐसे में वो एक पर्सनल डील जो है वो कर सकते हैं उनके साथ, या लेट्स से उनकी खुद की जो है वो शॉप है, उनके घर की पुश्तैनी शॉप है फर्नीचर की, और इस तरह का प्रोजेक्ट वो लेकर आए कि भैया सारा फर्नीचर जो है वो हमें चेंज करना है, ठीक है। तो वो वेंडर्स के साथ, डीलर्स के साथ जो है वो अपनी पर्सनल डीलिंग्स भी कर सकते हैं ऐसे में सिविल सर्वेंट, जिनको उनका खुद का फ़ायदा भी हो कि भैया हमसे जो है वो मटेरियल खरीद लो और तुम बनाकर जो है वो दे दो सरकार को, और इतना पैसा जो है वो हमें दे देना, इतना सरकार तुम्हें देगी। दिस इज द पर्सनल डीलिंग। द सिविल सर्वेंट्स आर नॉट सपोज टू डू एनी पर्सनल डीलिंग, कोई भी पर्सनल डीलिंग नहीं करनी उन्हें, एक पैसा जो है वो खुद के ऊपर खर्च नहीं करना सरकार का, अपनी सैलरी के अलावा, और कुछ पैसा जो है वो खुद के ऊपर खर्च नहीं करना, ठीक है। देन टू अवॉइड द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सो नो रेंटिंग और सेलिंग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, राइट। कई जगहों पर क्या होता है कि भैया जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, नए नए खासतौर पर जो सिविल सर्वेंट्स जाते हैं, या जिनकी फैमिलीज जो है वो दूर रह रही हैं, अगर पुराने सिविल सर्वेंट्स भी तो हैं, उनको बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े मकान मिलते हैं रहने के लिए। अब मान लीजिए 5-6 कमरे हैं उस मकान में और एक अकेला सिविल सर्वेंट है रहने वाला, तो वो क्या करेगा पूरे घर का? तो वो क्या करते हैं, एक कमरा अपने लिए रख लिया और बाकी चढ़ा दिया किराए पर। सैलरी तो आ रही है एक साइड से और दूसरी साइड जो है वो मोटा किराया भी आ रहा है, ठीक है। तो दे रेंटेड देयर प्रॉपर्टी। या हो सकता है कि सिविल सर्वेंट की अपनी गाड़ी है, उनके ऑफिस में जो है वो 4 गाड़ियाँ हैं, 4 में से 2 गाड़ियाँ जो है उन्होंने भाड़े पे चढ़ा दी, टैक्सी लगा रखी है, राइट। सो दे हैव रेंट कर दिया उन्होंने, या उन्होंने ऑफिस की प्रॉपर्टी जो है वो बेचनी शुरू कर दी। सो इट कम्स अंडर द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट, द सेक्शन 409 ऑफ आईपीसी एंड देन नाउ BNS, right? So that is again mentioned under code of conduct that they are not supposed to rent or misuse government vehicles or government houses or government property, right? Next is not to have any private business at side. No side business, right? अपनी सैलरी के अलावा आप जो है वो साइड में कोई और धंधा आपके नाम पर नहीं हो सकता, आप किसी भी बिजनेस में पार्टनर नहीं हो सकते, आपके नाम पर कोई भी बिजनेस जो है वो नहीं चल रहा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एकमात्र सैलरी आपको उठानी है वो कि क्या है, सरकार द्वारा दी जाने वाली सैलरी, ठीक है। अच्छा, देन नॉट टू पार्टिसिपेट इन स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, नो टू स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। Now civil servants can participate in the share market, यानी securities market में they can buy and sell securities, right, or shares. They can invest in mutual funds, और
जो लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डिंग कर सकते हैं सिविल सर्वेंट्स, डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होती है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है कि आज खरीदा, 1 घंटे में खरीदा, 2 घंटे में बेच दिया, ठीक है, तो इस ये ट्रेडिंग दे आर नॉट सपोज टू डू, राइट। सो नो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा। सिविल सर्वेंट के पास इतना टाइम नहीं होता। दे कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, राइट, दे कैन इन्वेस्ट इन, मतलब जो लॉन्ग टाइम के लिए जो बॉन्ड्स होते हैं, दे कैन इन्वेस्ट इन दैट, बट नॉट स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, राइट। देन नो इंटरेस्ट इन मनी लेंडिंग, राइट। सूदखोरी नहीं करनी है, इसको बोलते हैं सूदखोरी, मतलब बेसिकली ब्याज पर पैसा देना, ब्याजिया काम नहीं करना, सूदखोरी नहीं करनी है। बनिया वर्नैकुलर में इसको सूखा काम भी कहा जाता है। तो सूखा काम नहीं करना, यानी कि लेट्स से कोई सिविल सर्वेंट है, उनके पास ऑलरेडी जो है वो घर बार उनका काफ़ी सशक्त है, प्रॉपर्टीज उनके पास, और लेट्स से वो बिलोंग करते हैं ट्रेडिंग कम्युनिटी से, ठीक है, तो वो अब ब्याज पर पैसे देने का काम नहीं शुरू करेंगे साइड में, ठीक है। सो नो इंटरेस्ट इन मनी लेंडिंग, दे कैन लेंड मनी टू देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स डेफिनेटली, बट दे आर नॉट सपोज टू चार्ज एनी इंटरेस्ट। ब्याज नहीं लेना, ब्याज नहीं खाना उन्होंने, सूखा काम नहीं करना, ठीक है। देन नेक्स्ट, अगेन लास्ट पॉइंट आप एक और जोड़ सकते हैं, नो गिफ्ट्स, राइट, नो डिस्प्रपोर्शनेट गिफ्ट्स। मतलब गिफ्ट्स तो डेफिनेटली आपको कोई भी दे सकता है, ठीक है, बुके प्रेजेंट किया जाता है, या आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिलीज जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस में आपको गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा गिफ्ट नहीं लेना जो कि इन्फ्लुएंस करे आपके डिसीजन को, राइट, दैट कैन इन्फ्लुएंस योर decision. You are not supposed to take any such gift, right? So this is about the civil services, right? In the next session we'll enter into judicial service. Next हम बात करेंगे, एक लास्ट रह गया judicial service, right? We'll try to understand the corruption in judicial service, यानी कि what are the forms of corruption in judicial service, then what are the causes of corruption in judicial service, and then we'll enter into how to resolve this issue. So what we have already, right, क्या mechanisms जो है वो already present है, या what are the present mechanisms, and then what are the suggestions made by second ARC. So this we'll discuss in the next session, judicial corruption. All right, thank you for watching. आज जैसे मैंने आपको कहा था थोड़ा छोटा ही सेशन लूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में इसमें मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स दूंगा, विल डिस्कस दिस, राइट। एंड अनदर एक और टॉपिक हमें डिस्कस करना है, दैट इज करप्शन इन जुडिशरी के अलावा वी नीड टू डिस्कस दिस टू, कहाँ गया, utilization of public funds. So in the next session we'll discuss these two topics. First is corruption in judiciary, and then utilization of public funds. All right, so thank you for watching. मिलेंगे next class में. Take care. Have a nice day.